Hi guys, welcome to the episode number 5 of Bliss of Life. Well, we had a very amazing guest जो आपको भी पता चलेगा थोड़ी देर में एंड इस एपिसोड के थ्रू आप बहुत ज़्यादा स्किन केयर के बारे में जानेंगे, कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं, आजकल लोग क्या करवाते हैं. ये एपिसोड बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, फॉर यंग जनरेशन, फॉर ओल्ड जनरेशन, हर जनरेशन के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस एपिसोड से. सो आई होप यू गाइज विल एंजॉय दिस एपिसोड. So here we go. So hi Sonia, how are you? I'm good. How are you, I Komal? am amazing. Well, welcome to the show. We are Thank you very much. we're so happy to have you here. So thank you Same so here, much same here. for coming. As you know, our channel name is A Bliss of Life. So I would love to know, what is your bliss of life? My bliss of life is to be comfortable in my own skin. That's amazing. That's so beautiful. And why do you think कि being confident अपनी skin पे होना is like it's a bliss of life for you? अपनी skin में comfortable होना gives us the confidence. Because wherever we go, people look at us, and from there they treat us. From there, I'm not saying that I believe in only the outer look. I believe in your inside look too. Inside look is the one that gives us the confidence to face this life, to face this world. Perfect. Thank you so much. And do you think, like as you said, कि आपकी like beautiful in skin, like lot of people who has who thinks कि outer look ही, you know, there is a main, like that's their main presence. How would you change their perspective? अगर कोई बोले कि outer look is a very important thing है, और अगर किसी ने उस चीज़ को ऐसे समझ लिया है तो उसका पर्सपेक्टिव, आप उसको क्या जवाब दोगे कि हाँ ये you know that's not how it is? Okay, so I don't only believe के outer skin हम ये cream लगा ली, वो cream लगा ली can give us the beautiful skin. It's how we live our life too, our eating habits, our lifestyle. It's how active we are, हम exercise कितनी कर रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं. That also gives us what we are from outside. राइट अभी एक प्लांट है, आप उसको पानी नहीं दे रहे, आप उसको फर्टिलाइज नहीं कर रहे, प्रॉपर सनलाइट नहीं दे रहे, यू थिंक इट्स गोना ग्रो इनटू अ नाइस ट्री दैट विल गिव यू फ्रूट. सो सेम थिंग, दैट्स हाउ वी आर, राइट? इफ वी डोंट eat good, if we don't eat healthy, if we don't live a proper lifestyle, हमारा stress level, how we manage our life, everything, skin is inside out. Perfect. Do you follow anything to make your like skin beautiful? आप ऐसा कुछ करते हो like for your own skin, or you help people with that? Definitely, and whoever comes to me, that's what I tell them. I do exercise, I do yoga, meditation for stress relief. I do eat healthy, and I promote healthy eating too. And then I do things, I run a med spa. My spa name is Rejuven Med Spa. So I have treatments over there, and I do treat myself to have this kind of look and this kind of skin. आजकल like you know people जो like they're in mid 30s 40s, like they want to still you know look young. आप उसके लिए क्या advice करोगे, like what treatment people should get it, why they should get it? And आजकल वैसे भी like botox and fillers, you know, they are like on such a hype, and इसका लोग मजाक भी उड़ाते हैं, and some people also you know think कि it's a good thing. So what is your opinion on that? Excess of anything is not good, so in moderation everything is good. Women's over 30 definitely need some kind of treatments to stay young, because you see, women, I think her body is very scientific, and she goes through a roller coaster of emotions in her life. First, you're in university, you're studying, पढ़ाई का stress है. Then after that, job है, work, you know, you're so much involved into your work to make your career. Then you have partnership, life, then kids. Her body changes a lot during this. She goes through hormonal changes.
So definitely by the time she is in her 35, 40, she definitely needs these treatment. And I think today's age is 25. After 25, you should start getting something. Because what happens is जब भी हमारा स्किन पाइल अप होता है, जैसे आपके घर में डस्ट पाइल अप होती है, वी गेट दिस डेड स्किन पाइल अप ऑन आवर स्किन पोर्स, तो उसको डेफिनेटली हमें एक्सफोलिएशन चाहिए होता है. देन आफ्टर दैट हमको उसको कंडीशन करना होता है. सो इफ़ यू डू दीज थिंग्स इन योर 30s, you can do good. Then after mid 30s, especially after your kids, when you need a bit more of those treatments. Say, I would say you need micro needling, you need some kind of peel to take off that aging on you, to take off that dead skin, to rejuvenate your skin, keep good serums, healthy lifestyle, exercise. ये सब चाहिए होता है. Can you please go through the process ki logo jo, like you have said ki after 25 people should get treatments for the skin, तो आप ऐसा क्या treatment you will tell people कि आपको ये कराना चाहिए ना, you should do that. एवरी ट्रीटमेंट जो मैं करती हूँ अकॉर्डिंग टू देयर स्किन कंडीशन होता है, जिसकी जो रिक्वायरमेंट है. Okay. सो यूजुअली मुझे यंग टाइम पे ये नज़र आता है कि व्हेन द गर्ल इज़ अराउंड देयर बिटवीन देयर से 25 to 30, उनके हॉर्मोन्स अग्रेसिव होते हैं. सो व्हाट दे गेट इशू आजकल जितना नज़र आता है देखने में, एक्ने का आता है, ओपन पोर्स का आता है, कंजेस्टेड पोर्स का इशू आता है. ठीक है. So that I will again contribute to the lifestyle, stress level. ये तो एक्नी ज़्यादा होता है. एक्नी अभी ट्रीट कर लो बेटर है, rather than फ्यूचर इन लाइफ बाद में एक्नी स्कारिंग को ट्रीट किया जाए. बिकॉज एक्नी प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्नी जो अपने बाद स्कारिंग छोड़ के जाता है, दैट इज़ द बिग इशू. That you have to spend 4 times the amount of money and time to get rid of it. Okay. So ये जो होता है ना, अपना acne maintenance के लिए भी you need to get acne facials, ताकि अभी acne ठीक हो जाए. So now if we understand what is acne, acne है क्या? Acne बनता क्यों है? Acne बनता है accumulation of oil and bacteria. सो उससे वो पस आ जाती है. एनीवेज आपको कहीं भी इन्फेक्शन और पस होती है, सो सेम थिंग, एक्नी इज एन इन्फेक्शन. ओके. ठीक है. सो अभी मैंने आपको बोला था कि वुमेन की बॉडी बड़ी साइंटिफिक है. ठीक है. तो 2 हॉर्मोन्स जब हमें पीरियड्स में रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्टेरोन्स, दे मेक अस अ वुमेन फ्रॉम अ गर्ल. हाँ, वो एस्ट्रोजन्स मेक्स आवर ब्रेस्ट, it brings milk into a woman's body when she is breastfeeding. Progesterones हमारा यूट्रस को बनाते हैं. हमारे यूट्रस में मेन जो कोलेजन बनता है, वो एस्ट्रोजेंस की वजह से बनता है. एस्ट्रोजेंस मेक इलास्टिन. सो बाय द वर्ड इलास्टिन मीन स्ट्रेच. तो हमारे जो बॉडी में इलास्टिन फाइबर बनते हैं, वो एस्ट्रोजन से बनते हैं. एंड एस्ट्रोजन मेक्स कोलेजन. कोलेजन मेनली हमारी यूट्रस में बनता है. Okay. Why? Because a woman has to get pregnant, तो उसकी टमी को इतना स्ट्रेच होना होता है. एंड स्ट्रेच नहीं होगा, स्किन रिप हो जाएगी अगर उसमें कोलेजन नहीं होगा. सो दैट एक्सेस अमाउंट ऑफ कोलेजन व्हेन वी गेट थ्रू आउट आवर स्किन, दैट मेक्स दैट ऑयल, इट ब्रिंग्स ऑयल इनटू आवर पोर्स. और अगर हमारे पोर्स में बैक्टीरिया है, दे गेट द सेफ हेवन टू मेक एन एक्नी. Okay. Because they breed into it. मतलब बहुत ज़्यादा like बहुत ज़्यादा complications. अगर like a normal मतलब everybody should go and they should get treated just to Acne, get more knowledge. yes. Acne or acne grow होता है. Uh-huh. So you have acne, you slept on the pillow at night time, bacteria multiplies. You leave all the bacteria on the same pillow. Next day, चाहे next दूसरी side turn की, you're getting bacteria here. You're touching here, they are all spreading. So that is the reason why कहते हैं antibacterial face wash लेना चाहिए and facial करना चाहिए. So usually I do peels, because peels go deep inside into your skin and they kill that bacteria into your pores. तो वो उनका जो सेफ हेवन होता है बैक्टीरिया का, इट किल्स. इट्स सेम थिंग लाइक आपको टॉन्सिल्स हुए तो डॉक्टर टॉन्सिल्स निकाल देते हैं, बिकॉज बैक्टीरिया उन टॉन्सिल्स के नीचे अपना सेफ हेवन बनाते हैं.
Got it. So every time they pop up and they multiply, फिर बच्चे को infection हो जाता है. So that is acne is same thing. ओके गॉट इट और एक लाइक क्वेश्चन रिगार्डिंग अगर फॉर एग्जांपल नॉर्मल इंसान जिसको इतनी लाइक फॉर एग्जांपल एक्ने का नहीं है बट दे वांट टू मेक देयर यू नो स्किन क्योंकि कोलेजन लाइक आफ्टर 30 थोड़ा कम होने लग जाता है Yes. राइट एंड उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए बिटवीन 25-30 व्हाट ट्रीटमेंट यू वुड एडवाइस टू पीपल टू गेट इट स्किन को हम लोग करते हैं यूजुअली माय ट्रीटमेंट्स आर ऑल बेस्ड ऑन सीरम्स बिकॉज आई रन अ med spa सो मैं हाथों पे मैजिक नहीं रखती राइट yeah my machines can play so what I do is we do peels and then I add serums into your skin according to whatever your skin needs ओके जो आपकी स्किन की रिक्वायरमेंट है that kind of serum I add into your skin. So we peel the skin, we open your pores, and with the machine we infuse serums into your skin. ओके Some people they have naturally dry skin because they inherit अपनी mom से genetic है ठीक है then we add those serums that are hydrating जो उनको future में wrinkles आने ना दें. Some people they have say open pores then we try to add more vitamin C or we try to add vitamin B6 into their skin to condition their skin according to their need, ओके गॉट इट right? So that's what it is. Got it. Thank you so much for answering the That is question. for like a normal skin, right? Normal skin, yeah. आप माइक्रो नीडलिंग के बारे में भी बता रहे थे दैट इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस कैन यू वॉक अस थ्रू दैट एज वेल कि क्या होता है क्यों कराना चाहिए what kind of benefits you get it because I have heard and this is a very popular thing but I have no knowledge about it can you please tell us what it is क्या है वो? Okay, so आजकल जो मार्केट में माइक्रो नीडलिंग चल रही है there is a pen that has needles. Okay. So छोटी सी cartridge होती है and you go through and we rub the skin and we take off your dead skin. Okay. ठीक है? And the other one that is called RF microneedling which runs with the radio frequency technology added with needles in it, microneedling. Okay. So what it does is that it goes and the needles puncture into your skin and they are heated. RF is radio frequency is heat. Okay. Okay, and then what they do is they अब हमारे को ट्रॉमा हुआ तो ये हमारा नेचुरल हमारी बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है कि जो भी ट्रॉमा होता है हमारे वाइट सेल्स आते हैं एंड दे कम टू फिक्स इट. Okay. यू कट द स्किन विल गो बैक अगेन ये जुड़ जाएगी Automatically आपस heal. में. Yeah. Heal. हमारी बॉडी में हमारी नेचुरल हीलिंग पावर है. सो सेम थिंग व्हेन दोज नीडल्स कम एंड दे पंचर इनटू योर स्किन जो मैं आरएफ नीडलिंग की बात कर रही हूँ आरएफ माइक्रो नीडलिंग की then we open those channels and after that I put serum into your skin so those your skin is open and plus it's injured और हमारे सारे defense mechanism आ गया इस एरिया पे and they will absorb those serums. तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो serums जाते हैं और उसको ठीक करते हैं प्लस जब हमारी बॉडी का अपना मैकेनिज्म आता है तो अगर आपके ओपन पोर्स हैं उसको भी ठीक करता है. वो डिफरेंशिएट नहीं करता कि मैं जिसके लिए आया हूँ मुझे इसी को फिक्स करना है. Okay. Right? It's gonna fix your open pores, it's gonna fix your acne scarring, it's gonna fix your pigmentation क्योंकि वो सारा नया हमारे वाइट सेल्स आए ना जो they are the doctors. Okay. So they fix it. दूसरा जो मैं RF माइक्रो नीडलिंग के साथ एक नेचुरल प्रोसेस जो मैं बहुत यूज़ करती हूँ अपने स्पा में इट्स कॉल्ड PRP. Okay. Which is really popular because PRP is a natural हम growth cells डालते हैं. So PRP बनता है from your own blood. We take your blood, we centrifuge your blood and the full form of PRP is platelet rich plasma. Okay. I think you might have heard of plasma Yeah, facials yes. and all which are really popular. So we take that plasma out and we put that plasma on your face if you need skin rejuvenation. If you are
having a hair fall issue. Usually women's को menopausal के time बहुत hair fall issue होता है क्योंकि उनके hormones जो होते हैं, the estrogens and progesterones, they are not getting any more, testosterone are rising, so they get the male balding pattern which is here. They start losing their hair from the top. So we add PRP into their head for hair growth. We do PRP is like your own, it has growth cells. Okay. जो हमारी body growth cells बनाती है, जिस since the day we come into existence in our mother womb, we get growth cells that grows us. They make our organs, they grow us. Yeah. So those growth cells, we take it out from your blood, and through PRP we inject in your body. Okay. So say मुझे एक बार मेरा shoulder rip हो गया था, tissue rip हुआ था, so I couldn't even move my shoulder up. So मुझे डॉक्टर ने बोला why don't you get the PRP injections, and I got that within a month. My shoulders start working. When I was going for my physiotherapy, मैं आराम से अपनी exercise कर रही थी because they had the growth cells. Okay. So wherever we inject, those are clone cells. वो अपने आप को फिर उसी cells में दोबारा क्लोन कर लेते हैं. अगर ये मेरे टिश्यू के सेल्स हैं, ये टिश्यू में कन्वर्ट हो गए, हेयर सेल्स हैं, हेयर में डाला, हेयर सेल्स में कन्वर्ट हुए, फेस पे डाला, स्किन सेल्स में कन्वर्ट हो गए, बिकॉज ये क्लोन सेल्स हैं. Okay, got it. सो दैट्स व्हाट मैं इनकॉर्पोरेट करती हूँ कि व्हेन आई डू माइक्रो नीडलिंग, उसके ऊपर मैं PRP लगा देती हूँ फेस पे. So then you get skin cells. दर्द नहीं होती like क्योंकि इंजेक्ट हम numbing करते हैं. Okay. So we have this lidocaine base cream that we put it on your face for 40 minutes and you're all numb. Okay. So whatever I'm treating you, you don't feel that. It's the same. Lidocaine is the injection that dentists give you when they have to do a tooth extraction. Okay. or cavities करनी होती है, तो they freeze you. वो नहीं कहते they inject you and you are all frozen. Correct. So this is what we do through a cream. Okay, so it's like इतना painless है, like it doesn't pain. You get a little bit of feeling, but it's not that you cannot tolerate it. Okay. Because मैं ये रोज करती हूँ, and if they couldn't take it, then दोबारा लोग नहीं आते. Got it, ठीक है. Actually बहुत सारे लोग 30s और 40s में भी ये देख रहे होंगे पॉडकास्ट. आई वांट कि अब जैसे फॉर एग्जांपल कोलेजन का लेवल नीचे हो जाता है, राइट? तो पहली बात मेरे को जानना है कि व्हाट पीपल शुड ईट टू मेंटेन द कोलेजन, लाइक डाइट में क्या हेल्प कर सकता है और उनको ऐसे कौन से ट्रीटमेंट्स करवाने चाहिए टू मेंटेन दैट, यू नो, दे लुक यंग. सबसे सिंपल मंत्र है पानी. People don't drink water enough here. पानी, aloe vera, that's a natural thing that makes collagen. Okay. Easy. Green leafy vegetables, less of this processed food, Okay. because that only contributes to sugar and carbs, Correct. right? Healthy lifestyle will give you collagen. Okay. And for women who are maturing, flax seeds is a Okay. very good source of collagen. तो collagen तो हमें काफ़ी चीज़ें देती हैं. Good carbs भी हमें collagen देता है. अपना health, अपनी diet ठीक रखें, their collagen they will get collagen. Okay. Okay. और उनको ट्रीटमेंट्स क्या कराने चाहिए, लाइक टू मेंटेन दैट कोलेजन? To maintain that collagen, treatments like I said, microneedling, PRP, because collagen उनका down हो रहा है. अभी जैसे naturally women's after 30-40 nasolabial fold पे उनके यहाँ wrinkles आने लगते हैं, आंखों के नीचे आने लगते हैं. So what we do is we inject PRP in their eyes. Now this is something natural. Okay. अगर उनको लगता है कि oh I don't want to get Botox done, right? तो ये चीज़ें natural है. क्योंकि आपकी स्किन खुद वो कर रही है, रिपेयर कर रही है ना. right. ये PRP will make natural collagen because growth cells हैं, plus they have all the essential fluids and micronutrients. ठीक है. उसमें blood में क्या होता है, we have red blood cells and it has all the nutrition that we eat with the fluid in it, right? So now we extract and we separate the red blood cells. Red blood cells का काम क्या है हमारी बॉडी में? Red blood cells हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रैवल करता है ना,
जो हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं लंग्स एंड हार्ट में जब भी आता है, right. from veins the unoxygenated blood come and heart gets the oxygen from our lungs, वो उन दोनों को मिलाता है ना, पंपिंग स्टेशन है ना, Yeah. हार्ट तो Yeah. बेसिकली एक पंपिंग Yeah. स्टेशन है, Right. ठीक Right. है, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्टरीज में डालता है, वेन से ब्लड अनऑक्सीजनेटेड ऊपर आता है, सो बेसिकली ये रेड ब्लड सेल्स का काम है। सो जब ब्लड से हम रेड ब्लड सेल्स को अलग कर देते हैं तो येलो कलर का एक फ्लूइड निकलता है विच इज यूरिन लुकिंग फ्लूइड, Okay. उसमें सारा आपका न्यूट्रिशन होता है उस फ्लूइड में, सो इट हैज डेफिनेटली द कोलेजन Okay. that is running in the blood. Okay. So जब हम उसको अंडर आइज डालते हैं यानी नेज़ोलोबियल फोल्ड्स पे डालते हैं या फेस पे डालते हैं, यू आर गेटिंग इट नेचुरली। Okay. मतलब वो सबसे बढ़िया है, like better than Botox. या सो ये सब बेटर देन बोटॉक्स, इट्स नेचुरली। तो अगर आप ये 30s में जाके ये शुरू करते हैं, सो ऑब्वियसली यू आर डिलेइंग योर एजिंग प्रोसेस नेचुरली, राइट, एंड इट्स नेचुरली। सो अगर जिनको लगता है नहीं बोटॉक्स नहीं करवाना, दे कैन गो फॉर दिस वन, Got it. Right? पर लोग ये नेचुरल वाला क्यों नहीं जाते? Why they go for Botox? इट्स क्विक एंड ईजी, हर किसी के पास इतना टाइम नहीं है, हाँ, राइट। इस करके। कई बार आप जब माइक्रो नीडलिंग करवाते हैं तो फर्स्ट डे आपको रेडनेस आती है, आप 1-2 दिन, कईयों के पास नहीं होता दैट दे कैन सिट होम और वर्क फ्रॉम होम, सबके पास ये ऑप्शन Yeah. नहीं है, Yeah. ठीक है, तो हर किसी का लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। एंड समटाइम्स एट एज व्हेन यू आर 50-60, अगर आपके बोटॉक्स कई बार आपने ट्रीटमेंट्स करवाई भी, बट फिर भी कईयों ने बहुत साल तक ट्रीटमेंट नहीं कराई एंड ऑल ऑफ अ सडन ओवरनाइट तो आप ठीक नहीं हो जाओगे। सो अगर कुछ यूनिट बोटॉक्स के डाले, बिकॉज हमारे मसल्स विद एज लूज होते हैं, right? So what Botox does is Botox just simply relax your muscles. Okay. अभी मेरा है कि सारा दिन मेरे हाथ में सेल फोन है and I'm reading. So what I'm stressing on these muscles. Correct. हाँ, हाँ. तो obviously कुछ टाइम पे मेरे यहाँ आ जाएंगे लाइंस, आ गई लाइंस। अभी बोटॉक्स क्या करता है, वो उन मसल्स को जब हम इंजेक्ट करते हैं वो उन मसल्स को थोड़ा रिलैक्स कर देता है ताकि वो पूरा प्रेस ना हो। Okay. ओके, सो बोटॉक्स जब इन्वेंट हुआ था वो डॉक्टर्स ने इसीलिए इन्वेंट किया था व्हेन पीपल हैव सिवियर माइग्रेन्स, Oh. उनका अच्छा. ये मसल्स ओवर एक्टिव हो जाता है Okay. एंड दे गेट दिस, वो ब्लड को आने नहीं देता ब्रेन तक, सो पीपल गेट रियली बैड हेडेक। Oh, तो इस करके बोटॉक्स है. इसके लिए बोटॉक्स हुआ था। एंड हाइपर हाइड्रोक्सी है, जैसे कि आई एम स्ट्रेस्ड और मैं इतना स्वेट कर रही हूँ कि मेरे कपड़े बिल्कुल यहाँ तक वेट हो गए, मेरे हैंड्स पे कई लोगों को होता है। सो दैट्स व्हाट बोटॉक्स वाज इन्वेंटेड टू रिलैक्स द मसल्स, ताकि वो इतना स्वेट प्रोड्यूस ना करें, ताकि वो इतना पंप ना करें, सो दैट दे हैव दिस हेडेक। So that's what it was. But when they realized कि जब वो यहाँ डॉक्टर्स ने रियलाइज किया, जब वो यहाँ इंजेक्शंस देते थे उनकी रिंकल्स भी स्लो डाउन हो गई। सो दैट्स हाउ दे नो कि जब हम मसल्स को रिलैक्स कर रहे हैं वो इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही, तो रिंकल्स भी उनकी स्मूथ हो रही हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दे स्टार्टेड doing in aesthetic industry. Got it. Got it. Right. It's a very good information. Thank you for that. आपने जैसे ग्लैमरस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग they had Botox, पर उनकी ना पफीनेस हो जाती है उनके फेस में. Is it because of the overdose? क्या कोई साइड इफेक्ट होता है कि उसकी वजह से वो हो गया वो चीज़? Definitely. Filler means to fill in something. Okay. Botox और filler में कई लोगों को डिफरेंस ही नहीं पता, I don't right? know. I really don't know. Botox relaxes your muscles. उससे हमारी जो फाइन लाइंस एंड रिंकल्स हैं वो कम होती हैं, Okay. ठीक है। और फिलर का काम है फिल इन करना, Okay. ठीक है। that's why they are called filler and dermal fillers. They are basically made with hyaluronic acid, जिन्हें एक जेल एंड इन अ वेरी क्लोज प्रेस करके उनको बनाया जाता है। सो वो बेसिकली डलते हैं इन आवर नेज़ोलोबियल फोल्ड्स, बिकॉज ये एक हमारे डीप बन जाते हैं ना, डीप हो जाते हैं।
देन चीक्स में डलते हैं, लिप में डलते हैं, अंडर आई डलते हैं, और कहीं भी अगर आपका इंडेंटेशन हो रहा है ना, जो एक डीप बन रहा है, हाथों में डलते हैं। कई लोगों के हाथों पे बहुत उनकी वेन्स ऊपर आ जाती हैं, हमारा कोलेजन लूज हो जाता है जहाँ से, ओके सो पीपल पुट इट इनटू देयर हैंड्स। उसी कई टर्म्स है, कई लोग आजकल बट्स में डलवाते हैं टू एनहांस देयर ग्लूट्स। तो this is what it is. Now you're talking about puffiness. Puffiness is always excess of it. जब Excess ज्यादा of हो it, जाए right? Yeah. अभी अब फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है, उसका एक टाइम होता है कि एवरी ईयर यू नीड न्यू सिरिंज ऑफ फिलर, ठीक है। तो उनका क्या होता है, उनकी लाइफ इतनी एक डिफरेंट ही उनकी जिसे कहते हैं प्रेशर है लाइफ में। कोई नई मूवी स्टार्ट हो रही है, कहीं इवेंट पे जाना है, सो कई बार ओवरडोज हो जाता है, कई बार टू अर्ली हो जाता है, राइट? तो वो एडअप हो गया ना, Yeah. सो दैट्स व्हाट इट इज। बट कई सेलिब्रिटीज हैं जो एक नॉर्मल तरीके से, जैसे मर्लिन स्ट्रिप है, शी इज माय फेवरेट, उसका भी है, बट कभी आप ओवरडोज उसको नहीं देखोगे, ठीक है। अभी आप रिसेंटली हमने एक ये वेब सीरीज देखी थी, तालीवेर सुष्मिता सेन, उसके फिलर्स पे बड़ा चल रहा था। तो आपने देखा होगा कि उसको एक ट्रांसजेंडर में दिखाया, Yeah. तो उसको एक मैस्कुलिन फेस दैट Correct. टर्न्ड इनटू अ फेमिनिन फेस, Correct. तो Correct. उसके भी फिलर्स डाले, Yeah. ठीक है, ओवर किया उसको टू गिव दैट। सो पफीनेस उससे आती है जब हम ओवर डू कर लेते हैं। बट आई थिंक सो उनका आई मीन उसका नेचुरल भी ऑलरेडी है, लाइक पफीनेस है ऑलरेडी। या तो उसको ओवर किया गया, डाल के तो उसको एक्स्ट्रा। ये फिक्स नहीं हो सकता अगर एक बारी? नहीं, ये फिक्स हो सकता है, और उसने अभी फिक्स करवाया है दोबारा। Yeah. किसी के अगर फिलर्स डल गए एंड दे आर लिटिल एक्स्ट्रा, सो दे कैन कम एंड वी कैन रिवर्स द सिचुएशन। ओह ओके। उसके भी नीडल्स मिलते हैं, एंड देन वो जो जेल अंदर बन जाता है, इट ब्रेक्स द जेल, सो बॉडी आहिस्ता आहिस्ता उस फ्लूइड को अब्सॉर्ब कर लेती है, एंड इट सेंड्स इट टू द सोर्सेस। ओके, मतलब इसको हम ठीक कर सकते हैं अगर इसको हम ठीक, ओवरडोज अगर आपके बहुत एक्स्ट्रा हो गए एंड यू फील योर चीक्स आर लुकिंग रियली पफी, और आपकी आंखें छोटी हो गई हैं और भी, तो यू वांट ब्रिंग इट डाउन, तो यस वी डू इट। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट के यू गो फ्रॉम स्टेप 1 टू स्टेप 2, पहले थोड़ा एंड देन वी कैन ऐड इन मोर, टॉप अप और करवा लो, स्टार्ट विद हाफ सिरिंज करेक्ट एंड देन टॉप इट अप अगर आपको लग रहा है कम है। सो दैट इज द रीजन व्हाई जैसे विद एज हमारे लिप पे बड़ी रिंकल्स आ जाती हैं वुमेन के। जैसे हम मिडिल एज की बात करें, आफ्टर 40s की बात हम कर रहे हैं, राइट? तो वुमेन्स दे कम इन एंड लिपस्टिक भी लगाए ना, दैट रिंकल शोज। और आजकल कैमरेज तो दे विद देयर 3D एंड पिक्चर क्वालिटी आपकी इवन एक पोर ओपन भी नजर आता है। सो वी यूज हाफ अ सिरिंज, हम वो अपर लिप पे मेनली डालते हैं, थोड़ा सा लोअर लिप पे डालते हैं टू बैलेंस इट, एंड दे लुक वेरी नेचुरल, दे डोंट लुक लाइक डक लिप्स, या अनलेस समबडी वांट्स इट दैट काइंड ऑफ लुक, तो फिर करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू क्लाइंट डिमांड। आजकल प्लम्प लिप्स बहुत चल रहे हैं, लाइक दे वांटेड अ प्लम्प रेवेनीज, रशियन, उसको रशियन लिप बोलते हैं, एंड देन इट्स अ काइंड ऑफ वे जो फिलर डाले जाते हैं टू गिव मोर, जो हमें अपनी ये लाइंस है ना, बाउंड्री चाहिए होती है, देन दैट्स हाउ दे डू इट, ताकि हम जब लिपस्टिक लगाएं तो हमारा वो बाउंड्री पे अच्छा सा शेप आए, दैट एम शेप दैट वी नीडेड इन बिटवीन, वो सही लगे। ओके, परफेक्ट। आया मतलब मैंने ये भी सुना है कि आजकल लोग बहुत हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं ना, उसका प्रोसीजर क्या होता है? इज इट बिकॉज आई नो आई हैव हर्ड पीआरपी, आपने बोला था, मैंने वो सुना है कि वो पीआरपी प्रोसेस उसमें यूज होता है। डू यू आल्सो डू दैट? यस। ओके, सो डेफिनेटली मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट करवा के आते हैं, कनाडा से भी करवाते हैं, देयर आर डॉक्टर्स हियर, दे गो टू आउटसाइड कनाडा करवाने के लिए। पहले करवाना पड़ता है बिकॉज हमें वो हेयर स्ट्रॉन्ग करने होते हैं, स्ट्रेंथ देनी होती है। सो बेसिकली हम इसको एक लेमैन लैंग्वेज में समझते हैं। आपको अगर घर में एक ट्री लगाना है ना, तो आपको
डिग करना पड़ता है, फर्टिलाइज़र डालना पड़ता है, फिर आप नर्सरी से ट्री लाते हैं, लगाते हैं, फिर उसको आप और ऊपर से फर्टिलाइज़र डालते हैं ना. Yeah. सो PRP इज़ द फर्टिलाइज़र, Okay. क्योंकि उसमें ग्रोथ सेल्स होते हैं. सो लोग हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले अपना PRP करवाते हैं ताकि उनके हेयर स्ट्रैंड स्ट्रॉन्ग हो और बॉडी में उतना न्यूट्रिशन हो कि जब वो आपके फॉलिकल्स डाले. बिकॉज व्हाट दे डू इज बेसिकली वो आपके हेयर सेल्स यहाँ से निकालते हैं Okay. फ्रॉम दिस ऑक्सीपिटल बोन, दिस एरिया से निकाल के वो यहाँ डालते हैं आपके बॉल्डिंग पैटर्न में. Okay. ठीक है, तो जब वो निकाले ना तो आपके न्यूट्रिशन ऑलरेडी हो जिसमें वो सेल ग्रो कर सके. फिर उसके बाद 4 महीने बाद जब आपके रूट्स बैठने लगते हैं एंड नॉर्मल हो जाते हैं और वो थोड़ा डीप रूट हो जाते हैं, वो गेन करते हैं स्ट्रेंथ, देन पीपल कम बैक टू मी. फिर मैं उनका PRP ट्रीटमेंट करती हूँ सो दैट अभी जो नया से बेबी हेयर लगा है उनका, इट गेन्स द स्ट्रेंथ Okay. एंड वो स्ट्रैंड स्ट्रॉन्ग हो, हेल्थी हो और हेयर उनके अच्छे ग्रो करे, पतला बाल ना निकले, थिकर स्ट्रैंड हो. Okay. और अगर यहाँ इस एरिया में नहीं है तो फिर बाल कहाँ से निकलेंगे? यूजुअली डॉक्टर्स यहाँ से निकालते हैं, मोस्टली मेंस जो आते हैं वो वैसे ही एरिया अपना शेव करते हैं. सो दे गेट इट डन फ्रॉम हेयर, नेप ऑफ द नेक, चेस्ट से बाल निकालते हैं. देयर दीज डेज द डॉक्टर्स दे डू वंडर्स, वो काफी जगह से बाल निकाल सकते हैं. Okay. Yeah. Got it. अब pubic hair तो नहीं निकालते ना वो? No, no, that is different kind of hormonal hair. ओके, तो वो Yeah, नहीं होता. वो नहीं होता. ओके, गॉट इट. और ऑल्सो जैसे फॉर एग्जांपल आफ्टर लाइक व्हेन गर्ल्स गेट मेनोपॉज हो जाता है, उनके स्किन बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, राइट? एंड व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स यू विल एक्चुअली एडवाइस कि उनको करवाना चाहिए तो कि उनकी वो सही रहे, उनकी स्किन सही रहे? विमेन जब मेनोपॉज होती है ना, लाइक आई सेड के 2 हॉर्मोन्स जो हमारे को नहीं मिलते वो हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दैट मेक अस वुमेन, राइट? तो उसके बाद फर्स्ट थिंग दे नोटिस इन देयर स्किन डल हो गई है और एकदम से ओवरनाइट उनको अपने स्किन पे रिंकल्स नज़र आने लगते हैं क्योंकि इलास्टिन नहीं मिल रहा, कोलेजन नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से इलास्टिन की वजह से, थिंक अबाउट इट, इलास्टिन फाइबर्स आर लाइक द मैश जिस पे कोलेजन बैठा हुआ है. तो जब वो मैश लूज हो गया तो वो अपने आप कोलेजन जो है ना, इट्स कोलेजन, ये मैट्रेस है, इसमें इसका नीचे स्प्रिंग है. थिंक अबाउट इट, स्प्रिंग इज लाइक इलास्टिन फाइबर्स और ऊपर जो ये फोम है ये इट्स द कोलेजन. तो अगर वो फाइबर लूज हो गए, स्प्रिंग लूज हो गया तो अपने आप बैठ जाएगा ना फोम. सो सेम थिंग इज आवर स्किन, राइट? सो उनके लिए ना मैं ट्रीटमेंट जो यूज़ करती हूँ वो यूज़ करती हूँ, हमारे पास हाइफू है एंड मोर्फियस 8 which is RF microneedling. That is for skin tightening, and HIFU is high intense focus ultrasound. It's an ultrasound based machine जो कि जाती है and ultrasound works with sound waves. Okay. It's very there is no risk. Ultrasound तो आपका प्रेगनेंसी में भी होता है, Right. हर चीज़ के लिए आजकल अल्ट्रासाउंड चाहिए. सो अल्ट्रासाउंड ट्रैवल करती है, साउंड वेव्स है. तो ये साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं. सो दीज दे ट्रैवल इनटू आवर स्किन जोर जोर से, लाइक साउंड वेव्स. तभी कहते हैं ना मेटल मत डालो नहीं तो एको होगा, राइट? तो ये जब दिया जाता है तो आपके स्किन मसल्स को एक, जैसे कहते हैं ना जिम में एक शॉक मिलता है. तो जो हमारी मसल्स लूज होने लगती है ना, it's like you go to a gym and you tone your muscles. So HIFU is really effective for that age group. और ये आपको स्किन टाइटनिंग देता है, स्किन लिफ्टिंग देता है. विद इन अ मंथ यू सी रिजल्ट्स. ये आपको हर महीने नहीं करवाने होते. माई मशीन से हैज़ अ प्रोटोकॉल ऑफ 3 treatments in a year. I do, and then you come for your maintenance. अभी मेंटेनेंस तो हर चीज़ के लिए चाहिए. आपने इतनी अच्छी लैंडस्केपिंग की, अगर आप मेंटेन नहीं कर रहे सो वो इट विल गो बैक टू जीरो. तो आपने पहले 3 treatments करवा लीजिए. मेक योर मसल स्ट्रॉन्ग, स्किन आपकी टाइट हो गई, देन आपको साल में, डिपेंडिंग ऑन द एज, कईयों को मैं बोलती हूँ यू नीड 1 treatment a year, कईयों को मैं बोलती हूँ, बिकॉज
some women come to me at the age of 40, some 50, some 60. हर किसी की स्किन की कंडीशन डिफरेंट होती है. कई हैं 60 की हैं but they look like 40. Their skin is like naturally strong, muscles strong हैं, skin elasticity है अभी भी skin में. So I do once a year, twice a year treatment depending on. मैं अपनी भी करती हूँ. आप अपना खुद ही करते रहते हो like No, I have people, but some things I think I can do better myself. But I have people who help me do this stuff. Okay. So yeah. परफेक्ट, थैंक यू. आजकल लोग बहुत ज़्यादा स्किन लाइटनिंग भी कराते हैं, इट्स वेरी पॉपुलर दीज डेज. उसका क्या प्रोसेस होता है? व्हाट इज दैट? Skin lightening. So basically, it wasn't started as skin lightening. ओके. Glutathione जो है, that is a skin lightener. It's actually, to me, what it does is it cleanses your liver. ओके. ठीक है. So अगर आप नेचुरली कभी रिफ्लेक्सोलॉजी करवाइए या नेचुरोपैथ के पास जाते हो, वट एवर आवर स्किन शोज ऑल पार्ट्स ऑफ आवर ऑर्गन्स. ठीक है. लिवर में खराबी है तो यहाँ डार्क सर्कल्स आते हैं. अभी जैसे कई लोगों को डायबिटीज होती है तो उनके यहाँ पे डार्क पिगमेंटेशन हो जाती है. ओके. अगर आपके ब्लड में शुगर ज़्यादा है ना, सो व्हाट शुगर गिव्स अस, हलवा बनाया है, ठीक है, उसमें कभी शुगर है ना, कभी शुगर को डाल के मिठाई बनाई है, इट गिव्स दैट ब्राउनिंग जब शुगर पकती है ना. सो सेम थिंग, जब हमारे ब्लड में शुगर ज़्यादा होती है एंड वी गो अंडर द सन एंड हीट, ब्राउनिंग हो जाती है. दैट्स हाउ डायबिटिक लोगों का ये एरिया हमेशा डार्क होता है. ओके. सो अगर उसको आपने ठीक करना है, सो व्हाट वी डू is we do glutathione IV injections. So same thing with women during their menopause. उनको pigmentation हो जाती है. Women को 3 stages of life में pigmentation होती है. एक during her puberty when she starts to get her periods. एक during her pregnancy, same thing, hormonal imbalance. कईयों में एस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाता है, कईयों में प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा हो जाता है. एंड देन ड्यूरिंग देयर मेनोपॉज, जब उनके वो हॉर्मोन्स ख़त्म होने लगते हैं बॉडी से. ओके. राइट. दे आर नॉट गेटिंग हॉर्मोन्स एनी मोर इन देयर बॉडी. तो उस टाइम पे उनको पिगमेंटेशन होती है. दे गेट दैट ब्राउनिंग अराउंड देयर चीक्स. सो फॉर दोज वुमेन्स, बिकॉज देयर आर many laser treatments for pigmentation, but that is more for Caucasian skin. Okay. Because laser can burn easily an Asian skin. Oh. Because we have melanin, we have pigmentation, and जैसे laser is very heated treatment. तो laser, अभी आपने बहुत तेज धूप में काला कपड़ा पहना हुआ है. What it does is it penetrates the heat. So same thing, हमारा जो ये dark melanin है, ये absorb करता है हीट को. So we can get 3 degree burn with laser treatments. Okay. तो अभी mostly easiest treatment है to without any side effect is glutathione. Okay. Glutathione IV treatments करते हैं हम अपने spa में. And I myself had melasma. मुझे melasma हो गया था. Same thing, hormonal imbalance की वजह से. So I treated myself with glutathione. So we add vitamin C in glutathione. Then I have different packages for women with different problems. Okay. So during menopause, women face insomnia. उनको रात को नींद नहीं आती, hot flashes होते हैं, bloating होती है, एक पेट पे एक extra heaviness feel होता है जिसे menso welt बोला जाता है. Correct. Right? So glutathione fixes that because वो एक detox है. So it gives you relief from that. Mild depression होता है. Mild depression. There are many stages of depression, but ये mild depression होता है because of menopause की वजह से. वो we give vitamin D3, we add in or glutathione IV. The menopause rescue that we do. So I'm talking basically on menopause rescue. Okay. ये पैकेज जो हम बनाते हैं, उसमें हम विटामिन बी डालते हैं because when they are going through menopause, वो बहुत ही लो इन एनर्जी फील करती हैं.
Okay. right? So we add vitamin B. Vitamin B complex has vitamin A, B, C, D. जैसे B3 आजकल niacinamide का बड़ा चल रहा है. Right. That is for skin. Right. Okay, vitamin B7 is biotin. That is for your hair. Okay. B6, they all contributes, and plus vitamin B जो है वो हमारा सारा micronutrients जो है वो food में से absorb करता है, Okay. and it gives circulate it to the skin. Vitamin B basically skin के लिए काम करता है. Okay. So when I do this menopause rescue, I add. Then some women they have really the skin is getting dull, so हम उनके लिए zinc add करते हैं, magnesium add करते हैं, because magnesium एक heart health होता है. दूसरा जो menopause में काम करता है वो insomnia के लिए काम करता है, जिनको नींद नहीं आती. So जब मैं glutathione IV package बनाती हूँ for menopause rescue, तो हम डिपेंडिंग ऑन उनको क्या सिचुएशन फील कर रही हैं वो मेनोपॉज में, वो हम ऐड करते हैं उनके लिए Okay. टू सॉल्व देयर इश्यूज. तो उससे उनको मतलब सही लगता है, लाइक उससे उनको सही लगता है. कईयों को जैसे जस्ट किसी को एनर्जी के लिए होता है एंड दे आर यंग, तो हम उनके लिए डिफरेंट वाइटामिन्स ऐड करते हैं. कईयों को क्लाइंट्स आते हैं जिनको यंग हैं बट दे आर हैविंग पिगमेंटेशन इश्यूज, उनके लिए हम डिफरेंट ऐड करते हैं. उनके लिए मे बी वी ओनली ऐड विटामिन बी, विटामिन सी एंड ग्लूटाथायोन. ठीक है, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द स्किन ऑफ द पर्सन, स्किन, एज, देयर सिचुएशन. ओके. या आजकल जैसे अब इसके लिए एक नेचुरल भी होता है और एक सिंथेटिक भी होता है, सो व्हिच प्रोसेस इज बेटर फॉर पीपल? See, the thing is that I always go with natural, right? But this is not synthetic. वैसे भी normally tell me, you're young too, लेकिन आप कोई ना कोई vitamin तो ले रही हैं as a supplement. ठीक है? We go to gym, we take our supplements too, right? Because we need those amino acids के हमारे muscles grow करें. You get that? Now the thing is that, say I'm talking about women who are having menopausal issues. Now because of the hormones, उनके जो हैं proper vitamins नहीं बन रहे, उनकी स्किन उतनी विटामिन एंटीऑक्सीडेंट नहीं बना रहा जो कि उनके फ्री रेडिकल्स जो है आ रहे हैं एंड दे आर गेटिंग पिगमेंटेशन. सो फॉर द टाइम के उनके हो गए, अभी पिगमेंटेशन आ गई स्किन पे, उसे अब हम कैसे क्लियर करें? हेडेक हो रही है, एक टाइलेनॉल तो लेना ही पड़ेगा. ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि यू नीड टू टेक टाइलेनॉल ऑल योर लाइफ, for the time being that you have. अभी पिगमेंटेशन आ गई है and you need to clear it out. ठीक है, you have some kind of dark this area around your chin. कईयों का होता है. So you need to even fix I have that. it a little Yes, bit. Yeah. under your eyes. Yeah. You need to fix that. So उसके लिए भी, and plus having a dose of vitamin is never a bad idea. Because this through IV, it doesn't put too much pressure on your liver. Okay. And anyhow, sometimes when we overdose with a vitamin, sometimes it put too much pressure in our liver, right? And the good thing about vitamin B or C, they don't stay too much into your body, you pee it out. But this way, when you take it through your IV, they right the way go into your bloodstream and they fix your skin, they do the job what they are supposed to do. Okay, so matlab it's fine and it's good to take it because Yes. it makes the process faster. And मैं जो करती हूँ, मैं अपने clients को recommend करती हूँ, जैसे मेरे पास women आती है with deep pigmentation, तो उनको कहती हूँ कि in a year, especially 7-8 ले लो अभी, and then stop it. Let your body work. Otherwise आपकी body lazy हो जाएगी और वो food से consume करना भूल जाएगी. Correct. Because उसको naturally इतना heavy dose मिल रहा है. ठीक है? Then stop it. Then come back to me. So winter time में usually मैं menopausal woman को कहती हूँ start it by August, because उस time क्या होता है, थोड़ा हमारा timing change हो जाता है. It's getting dark soon. Right. हाँ? Right. तो मार्च तक ले लो. And then enjoy your summer, get good sunlight, and then if that your body needs, अभी आपका ठीक नहीं हुई, situation ठीक नहीं हुई, mostly मेरे जो clientele है जो middle age है,
वो विंटर में 4-5 ले लेते हैं, दे स्टे गुड, एनर्जेटिक रहता है. विंटर में वैसे ही हमारी एनर्जी स्लो हो जाती है बिकॉज वी डोंट गेट इनफ सनलाइट, और कनाडा में वैसे भी D3 की लोगों को कमी होती है. करेक्ट. That brings them a mild depression for winter. So that is a good thing when you take it. Okay, got it. आजकल like there's so many process and it has been like so popular. पहले नहीं था कि लोग इतने ज़्यादा करवाते थे ना, बोटॉक्स, फिलर्स और भी बहुत सारी, जैसे PRP, माइक्रो नीडलिंग, ये अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है फ्रॉम लास्ट 10-15 years. What like, और स्पेशली यू ऑल्सो वर्क फॉर द वुमेन हेल्थ एज वेल, कि उनका सही रहे. तो ऐसे कौन से एडवाइस, आप कौन सा ऐसा प्रोसेस बताओगे विच इज़ गुड फॉर देम एंड दे शुड गेट इट डन? For their health wise, for their look wise, for what like context we are talking about? Basically women health के लिए, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, it's been popularized. तो आप ऐसा कौन सा प्रोसेस बताओगे, या कौन सा, क्या कहते हैं, what's the word? PRP is something that we can do for anything. Okay. Right? Because it has growth cells that I'm talking about. मेरा PRP का treatment इतना popular चलता है that it also goes for women health, for their, like we do a lot of menopausal women, their treatments, right? मेरे पास बहुत treatments आती हैं. It affects in all aspects of their life. Mood swings तो होते ही है. Sometimes they don't get no desire for intimacy, which brings that midlife crisis into their life. So PRP, we do a part of PRP which is called O shot, which is orgasm shot, and it's very common. बहुत सारे doctors करते हैं ये. So we put PRP into there is part cortosis, which is in woman's vagina, and we do it, we inject it in there. That brings कई बार dryness हो जाती है. So because they don't feel comfortable, so it helps them to bring the intimacy in them, because growth cells, so it brings their sexual cells up. Okay. Right? And it helps with dryness, ठीक हो जाती है उससे उनकी. Because you know your family life, your relationship is also in this. Correct. It's heavily involved, right? And we invest in our family time. Okay. So उसके लिए भी ये बहुत रहता है. Even for men's P shot, women who have erectile dysfunction, but I recommend them to get it through a doctor. Okay. So it's better. Yes, to get it's it. better. Okay. Yeah, but for women's we do. Okay. And there is also क्योंकि obviously after menstruation there is lot of problem in the family life में, या जो भी उनके sexual relationship होते हैं उसमें problem आ सकती है. So that can help. That can also help. O-shot can help. Yes, we do vaginal tightening. Okay. Which I was talking through HIFU. Okay. So I have this HIFU machine that helps, because उसमें भी same thing है, muscles lose हो जाते हैं, right? I said already dryness हो जाती है. So HIFU can help, and I do HIFU for so many women. It's under the blanket, we don't talk it openly, but I do that. I do that for so many women because it's natural. We are human beings. जैसे skin sag होती है, इसके muscles lose होते हैं. Correct. When you're young, you go to gym, you can get toned easily. But you know, when we grow, we are doing the same exercise. I am doing the weight training. You're doing the weight training. You will get the muscles. Some, you know, women with an older age, they don't get the muscles. So same thing over there too. You lose the muscles. Correct. So you lose the muscle mass. Correct. So then with the HIFU, vaginal tightening, we do vaginal tightening. So it helps them. I think so. It also gives a sense of mental peace to a woman. Exactly. Yes, mental peace होगा तो family life भी ठीक रहेगी. Correct. क्योंकि obviously women के इतने ज़्यादा hormones ups and downs होते हैं, right? And things change before you start the period, during the period, after you get pregnant, and then you have end of menopause. So woman की hormone cycle of life यही है. Every 5 years we change, and especially women, they are science. पता नहीं ये ऊपर वाले ने कैसा complex laboratory बनाई है
that every 5 years Yeah. things changes in women's. Yeah. I want कि आप audience को बताएं कि because it's a very good education you have given. Thank you so much for sharing the information. I want you to tell them about your med spa कहाँ पे so that the information they're looking, they want to get it done so that they can come to you. So my med spa name is Rejuven Med Spa. We are online. You can check it our website www.rejuvenmedspa. We are located in Woodbridge, and I am here to serve you. So any part from GTA, we serve. So please guys, if you want any, even if for consultant, you can always consult her as well. And please go and have this information just to take care of your body. So just make sure you do that. And also I will put the link down below. You can contact her, and I will also put her Instagram page so that you can see her work, what it is and what not. And thank you so much guys, and thank you so much for coming to this podcast. Thank you, Komal. I had really like the had best a good time talking to you too. It was a good time. It was good to, get some information exchange about women's health, about overall men's or women's. I serve both. There is no differentiation. Skin is skin. Yes, yes. You And I know? think so बहुत important था कि लोगों के पास knowledge नहीं है, and I'm so glad you came here and you are sharing the information. बहुत ज़रूरी था कि लोगों को पता चले कि what is what's the reality of it, क्योंकि आधे से ज़्यादा myth होते हैं and they don't have, when they search on Google they don't have the information. So thank you so much for sharing again. Thank you so much for coming to the show. Thank you guys for watching, and I do have a gift for you, which is this. Thank you. We give That's to every Bliss. Yes, that's Oh, Bliss. wow. I like his glasses, sunglasses. Yeah, so this is actually, I drew it. Wow, you So and we are giving to every guest such which nice is coming. talent, Komal. Thank you. Thank you. So we are giving to every guest we have on the podcast. This is like a memory for you as well, Yes. that you came, and we will definitely do the second podcast as well. I think so. हमें और बात details में करनी चाहिए. I think so. This is a knowledge which everybody should consume. So again, thank you so much. Thank you, giving us Komal. blessing. Thank you so much for coming. And inviting me. thank you so much, guys, for watching. And I hope you will enjoy this podcast. And thank you so much for all the love. Bye, guys. Take care. Lots Bye-bye. of love. I hope, guys, आप इस podcast से आपको बहुत मज़ा आया होगा देख के, और आपने बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि ये एपिसोड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था. एंड आई होप यू गाइज विल शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. करो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन लॉट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट दिस. बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, और आप जितना शेयर करोगे उतनी लोगों को नॉलेज मिलेगी. एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग इतना सारा प्यार इस चैनल को देने के लिए, मुझे देने के लिए, मेरे टीम को देने के लिए. थैंक यू सो मच. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. प्लीज़ शेयर ऑल द वीडियोज़ एज मच एज यू कैन. हमारा जितना भी कॉन्टेंट है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है. एंड आई होप यू गाइज आर enjoying the content. And thank you so much for watching, and lots of love. Thank you.